Hello students, this is Ahmed Khan from Shivjyoti Educational Group, and today we are going to learn one of the wonderful chapter of economics, chapter 3, that is money and credit. But students, before that, I request you, when you watch this video, your textbook must be open. I am going to mark important points, internal questions while I am teaching in this video. I request you, if you don't understand anything, please rewind the video and watch it again. If you want to jot down any points in this video, please pause the video and please jot it down. So without wasting time, let's begin with this wonderful chapter, that is money and credit. What we are going to discuss in this chapter? We are dividing this chapter into two parts, dear students. In this part, we are going to discuss money, that is introduction of money, money as a medium of exchange, that is barter system, limitations of barter system. We are going to talk about the modern forms of money, that is demand deposits, that is deposits with bank. We will talk about currency and we will talk about loan activities of bank. This part, that is part 2, we are going to discuss in the next video. Okay, so let us start. Money. This word is very common for us. Whenever we talk about money, everybody becomes excited. हर कोई खुश हो जाता है. पैसा is very important for everybody. If you go to a shop, if you go to a mall, you go anywhere, if you buy anything, you have to do the transaction in money, right? Now remember one thing, dear students, when we talk about money, we have never thought from where this money has come. हमने कभी शायद इस चीज पे गौर नहीं किया होगा कि ये पैसा आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई, and what is actually money. Okay, and if you remember a beautiful movie called PK, अगर इस मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जहां पे आमिर खान जो हैं वो देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट देकर गाजर खरीद रहा है, एंड व्हेन ही डज द सेम थिंग, ही कॉपीज दैट पर्सन. वो गांधी जी के सारे पोस्टर्स को कलेक्ट करके उस दुकानदार को देते हैं, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट इट, बट ही एक्सेप्ट एग्जैक्ट दैट नोट which is called money, currency. We'll talk about that also. Okay, so first we need to know what is money. पैसा क्या है? There is a definition here. It is anything which has common acceptability as means of exchange, a measure and a store of value. This means when we talk about money, that is standard. पैसा standard होता है. हर एक नोट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का नोट होगा, सिमिलर होगा, 100 रुपीज का होगा, सिमिलर होगा, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. व्हाई इट इज एक्सेप्टेबल, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर. ओके, एंड सेकेंडरी थिंग, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. विल टॉक अबाउट दिस अगेन लेटर इन दिस चैप्टर. ओके, सो मनी, नाउ फॉर नाउ मनी इज पैसा, जो हम सब जानते हैं. फॉर एनी ट्रांजेक्शन वी यूज मनी. अब तक हमें यह पता है कि किसी भी चीज को खरीदना है, लेना है, तो हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दिस मनी हैज कम. ओके, सो बिफोर मनी, पैसे के पहले कैसे लोग ट्रेड करते थे, कैसे आप ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे. वी आर गोइंग टू सी दिस. एंड अर्लियर देयर वाज बार्टर सिस्टम. विच सिस्टम? बार्टर सिस्टम. नाउ अ क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड, सर व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सर ये बार्टर सिस्टम है क्या? In simple words, barter system wherein you exchange good for other goods. क्या है बच्चों barter system? Exchanging good for other goods. It's called barter system. Okay, you can see here barter system wherein you exchange commodity. Commodity मतलब चीजें for other goods. It is called barter system. At this particular time, इस समय पे पैसा नहीं था, and that's why people used to do trade in this manner. इस तरीके से लोग व्यापार किया करते थे. ओके, let us understand this barter system with an example. Okay, and we'll find out the problems with this system and why money was introduced. Okay, you can see here there are two people. दो लोग हैं यहां पर, आप देख सकते हैं. एक क्या कह रहा है? I will give rice for shoes. So this person wants shoes. In return, he is ready to give rice. On the other side, we have one more person here. He is saying, I have fish to give and I need rice. ये क्या कह रहे हैं? इनके पास फिश है और इनको राइस चाहिए. बट अगर हम देखें
इफ यू सी प्रॉपर्ली हियर, ओके, अगर हम देखें इस इमेज के अंदर दोनों का ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस शख्स को जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, तो यहां पर ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा, व्यापार पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बिकॉज इन बार्टर सिस्टम क्या होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। देन ओनली अ ट्रेड कैन हैपन इन बार्टर सिस्टम। लेट अस सी हियर, यहां देखते हैं, ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल हियर, दैट इज हियर वी हैव 3 पीपल, 3 लोग यहां पर है। वन, आई विल गिव शूज फॉर अ न्यू हैमर, इनको हथौड़ा चाहिए। आई विल गिव राइस फॉर शूज, ये अपना राइस बेचने को तैयार है फॉर शूज। ऑन द अदर साइड वी हैव वन मोर पर्सन हियर, आई विश टू गिव fish and I need rice. Here if you see, no exchange possible as requirements do not match. किसी की भी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही है, तो यहां पे ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेड विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट इज मैच्ड। ओके, यू कैन सी हियर अगेन, आप यहां देख सकते हैं इस इमेज में, आई विल गिव राइस फॉर फिश। नाउ दिस पर्सन वांट्स फिश, ओके, आई हैव फिश टू गिव एंड आई नीड राइस। तो इफ यू सी हियर, बोथ द पीपल, दोनों ही दे आर रेडी एंड दे वांट सेम थिंग्स व्हिच द अदर पर्सन हैज। जब जो मुझे चाहिए वो किसी और के पास है और जो उसको चाहिए वो मेरे पास है, देन ओनली द ट्रेड कैन बी पॉसिबल। एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? बच्चों, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब यह है कि जो मुझे चाहिए, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके, जो मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे राइस चाहिए और आपके पास फिश है, तो जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, then only a trade is possible and this term is called double coincidence of wants. Okay, in simple terms इसी को हम क्या कहते हैं, double coincidence of wants. Okay, आगे देखते हैं। Here we are talking in terms of money. Okay, अगर हम पैसे की बात करें, let's see, अब हम पैसे की बात करते हैं। Shoes rupees 250, rice rupees 200 and fish is rupees 120 per kg. If we talk about money, अगर हम पैसे की बात करें तो यहां क्या होगा, every person will sell and earn money. हर एक इंसान बेचेगा अपनी चीजों को and in return what he will get is money. Now when he'll get money, जब उसको पैसा मिलेगा, यहां पैसा किस तरह एक्ट कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो हियर money is acting as medium of exchange. What do you mean by medium of exchange? In barter system, the medium of exchange were the goods. barter system के अंदर हम चीजों के बदले चीजें बेच रहे थे। But on the other side, when we talk about money, जब हम पैसे की बात करते हैं, आप कुछ भी लोगे। If you go to a shop, I will give you example. मान के चलिए आप एक दुकान पे जाते हैं, you go to a shop, okay? शॉप पे जाकर आप वहां पर एक चॉकलेट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेरी मिल्क, जो 10 रुपए की है। सो यू हैव टू पे 10 रुपीज, राइट? फिर आपका मन करता है कि नहीं चॉकलेट नहीं लेना है, आई विल टेक चिप्स। अगर आप चिप्स भी लेना चाहेंगे तब भी आपको 10 रुपीज ही देने पड़ेंगे। Then you say no, I don't want to take chips. I will take 2 pens. 2 पेन ले लेता हूं मैं, 5 रुपए वाले, 5 रुपीस वाले. Then only you will give the same note. So what is happening here? Money you can use as a medium of exchange. पैसे को आप कुछ भी लीजिए, आप exchange कर सकते हैं। पर in barter system there was a problem. The problem of double coincidence of wants, which we just talked. Okay? So we found out, हमें पता चला कि barter system had limitations. बच्चों, what do you mean by limitations? Limitations का मतलब होता है drawbacks. Drawbacks का मतलब क्या होता है? Demerits. Demerits का मतलब disadvantages. Okay, this all meaning are having the same word is having the same meaning, right? So what are the limitations of barter system? Barter system के इस disadvantages की वजह से ही पैसा आया. Because money removed all the limitations of the barter system. Let us see one by one. First limitation, lack of double coincidence of wants.
When I talk about lack of double coincidence of bond, बच्चों I'll give you the same example जो मैंने बार बार आपको बताया है. आपके बाटर सिस्टम में तभी एक्सचेंज पॉसिबल है जब आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास है और मेरे पास जो चीज है वो आपको चाहिए होनी चाहिए. देन ओनली द ट्रेड इज पॉसिबल. और जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो और ऐसा इंसान आपको हर जगह मिले. इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. सेकेंड, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. इन बाटर सिस्टम we exchange good for other goods which we cannot store the value of goods, right? I will give you example. Imagine कीजिए मेरे पास 100 रुपए का नोट है जिसको मैं 1 महीना अपने जेब में रख रहा हूं और मेरे पास 1 किलो टमाटर है जिसको भी मैं 1 महीना रख रहा हूं. You tell me, क्या 1 महीने तक वो टमाटर वैसे ही रहेंगे जैसे थे या वो 100 रुपए का नोट वैसे ही रहेगा जैसा वो था? सो योर आंसर विल बी, आपका जवाब ये होगा सर 100 रुपए का नोट वैसे ही रहेगा पर टमाटर जो है शायद गायब हो जाए, खराब हो जाएंगे एंड वी कैन नॉट यूज इट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोर ऑफ वैल्यू, जब हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आप उसको कितने टाइम पीरियड के लिए भी रखिए उसका वैल्यू खराब नहीं होगा. ओके उसका वैल्यू खत्म नहीं होगा. पर गुड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं था. You could not store it for a longer time. So this was one more disadvantage. Third point is lack of standard for deferred payment. When we talk about lack of standard of deferred payment in barter system, you could not say आप चीजें मुझे दे दो और मैं आपकी चीज बाद में दूंगा. It was not possible in barter system. It was spot trade. Spot trade का मतलब है एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो. Otherwise the trade is not possible. नहीं तो क्या होगा, ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. आज हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं. हम आज पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं जिससे हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं बाद में आपका पेमेंट कर सकता हूं एंड आई विल गेट द थिंग्स. ओके वी हैव क्रेडिट कार्ड्स जिससे हम बाद में पेमेंट पैसे कर सकते हैं. राइट वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टुडे जो बार्टर सिस्टम में नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. When we talk about common unit of value, हर एक चीज का वैल्यू सेम नहीं था. अलग अलग चीज का वैल्यू अलग अलग होगा. ओके पोटैटोज विल हैव डिफरेंट वैल्यू, कैटल विल हैव डिफरेंट वैल्यू, मिल्क विल हैव डिफरेंट वैल्यू. तो अलग अलग चीज का अलग अलग वैल्यू है. पर व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, 10 रुपीज का वैल्यू 10 ही रहेगा, 100 रुपीज का वैल्यू 100 ही रहेगा, 2000 रुपीज का वैल्यू 2000 ही रहेगा, 500 का वैल्यू 500 ही रहेगा बच्चे. Okay, so we have a fixed value in money. Okay, so this were the limitations of barter system. ये सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम के जिसके वजह से we had to use money. Now remember one thing बच्चों, अब ये सारे ड्रॉबैक्स हैं इसको उल्टा कर दीजिए, आप ऑपोजिट कर दीजिए and that is the work of money. Okay, and the basic function of money is it is medium of exchange. इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब यह है बच्चों कि आपको अगर कुछ भी लेना है तो आप पैसा देकर एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर. अब हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन है दैट इज इंटरनल क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक. आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा बच्चों. ओके आई विल शो यू. यस here page number 39. Page number 39, the question is define barter system and the limitations of barter system. Define barter system. आप उस क्वेश्चन को यहां लिख लीजिए बच्चों अपने पेंसिल से. ओके यू राइट इट हियर. डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. दिस येलो पोर्शन, ये जो मैंने येलो पोर्शन मार्क किया है, यू विल हैव ऑल द आंसर हियर. इसमें आपको मिक्स आंसर मिलेगा. प्लस I have talked about the limitation of barter system in this video also. मैंने limitations already discuss किए हैं. आप pause करके वो limitations भी चाहे तो लिख सकते हैं. Okay? So this is your answer. That is define barter system and the limitations of barter system. Fine?
Okay, let's move on this chapter. आगे बढ़ते हैं. Okay, so define barter system. I'll just read for you. A barter system can be defined as a transaction system wherein goods directly are exchanged for other goods. In simple terms, when we exchange good for other goods is called barter system. Limitations बच्चों we have already discussed. Okay, आगे बढ़ते हैं. If you don't understand anything, pause the video or rewind it again and watch it again. You will definitely understand. Okay. Next, we'll talk about modern forms of money. Modern forms of money. I'll just give you a story. Okay. I'll just give you example. Example of mine only. मेरा example देता हूँ मैं आपको. Every month I get salary. हर महीने मुझे सैलरी मिलती है. Now, जब मुझे सैलरी मिलती है बच्चों, when I get the salary, I will use some amount, उसमें से कुछ पैसा मैं अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करूंगा for my basic necessities, and the remaining amount, the extra cash which I have, जिसको हम surplus cash कहते हैं, we call it as surplus cash. Now this cash, now I'll be worried about. मैं जब भी जाऊंगा तो अपने जेब में बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाऊंगा तो मुझे एक डर रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई चोर मुझे लूट ना ले. So this thing will make me worry. Today we have banks. आज हमारे पास banks हैं. Banks में पैसे जमा करने के लिए to deposit the money in the banks, you should first have the bank account. आपके पास उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए. When you have the bank account, जो आपका एक्स्ट्रा कैश है, you can deposit in the bank. That money you can deposit in the bank. Now, there are very good advantages for this. You will have lot of benefits when you deposit your cash in the bank. First, security. सबसे पहले तो security. पैसा चोरी होगा इसका कोई ये नहीं है. Second thing, the money which you kept or keep in the bank, you will get interest for that. उस पैसे का आपको interest भी मिलेगा. That is an advantage for you. So definitely I'll go for a bank and I will store my money in the bank. Okay. When we talk about deposits with bank, we are talking about demand deposits. What do you mean by demand deposit? The money which I deposit in the bank, I can withdraw that money at any time. But remember one thing, आप छुट्टी के वक्त जाकर नहीं withdraw कर सकते. The bank have some limitations. Okay? Sunday में जाके आप नहीं कर सकते. That is common sense बच्चों. जब बैंक बंद रहेगा तो आप जाके पैसा withdraw नहीं कर सकते. Any working day, जब बैंक का कोई भी working day होगा, you can go in the bank and you can withdraw your cash. Okay? This is called demand deposit. Demand deposit इसलिए कहा जाता है, you get a facility here. You get a facility, you can withdraw your cash on demand at any time. Those people who have their bank account, they get one more benefit. They get checkbook. उनको checkbook भी मिलती है. Now this checkbook, they can write the check. Okay, we'll see that in further slides. Okay, इस check से आप further payment भी कर सकते हो without cash. This is also an advantage. Okay, so demand deposit, we talk about the other form of money we are talking about. Okay, so what are demand deposits? What are its features? This is one more internal question. So you have to mark this in your textbook. Okay. So demand deposit, beta, in this on this page you have to come, and here you can see the green lines which are marked here. This is your answer, but it is in continuation. I'll show you. जितना भी green marked होगा, I'll show you. You have to jot it down. आप इसको अपने book में underline कर लीजिएगा as it is. Okay? Define demand deposit. I'll show you the answer also. No need to worry. जरूरी नहीं बच्चों कि आप यही word to word लिखें. जो slide में answer है, you can write down that answer also. It won't be wrong. But you have to mark this in your textbook. Okay? Okay, you can write a question here down. Define demand deposit. Okay, this is a continuation here. उसी का continuation है next page पे. यहाँ पे क्या बोला गया है? You see, a check is a paper instrument जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं. Okay, it is a part of demand deposit. जिसका account है उसको check मिलता है. Check क्या है? What is the check? We will going to see it later. Okay, we have further here
Okay, you have one more paragraph. If you want, you can read this one also, but no need to worry about it. I will show you the answer here. Okay, we have a question here, demand deposits and what are its feature. Fine. Okay, ठीक है. I'll just read it for you because this is very important. I have already discussed, but I'll read it for you. The money deposited in the bank account which can be withdrawn on demand is known as demand deposit. जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, उस पैसे को आप कोई भी वर्किंग डे में विड्रॉ कर सकते हैं. That is demand deposit. Okay, and what are its features? This is very important for you. It shares the essential feature of money. Payments can be done by check instead of cash. तो चेक से आप पेमेंट करते हैं बिना कैश के. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. इसको चेक को हर कोई यूज करता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है, इस वजह से हम इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी भी कहते हैं. ओके, चेक. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेक. ओके, इट लुक्स लाइक दिस. ओके, नाउ दिस आर द फीचर्स ऑफ चेक. अगर आप एक चेक देखोगे तो आप क्या क्या फाइंड करेंगे, उसमें क्या क्या चीज होती है चेक के अंदर. यू विल हैव अकाउंट नंबर. ओके, यू विल हैव नेम ऑफ द पेइंग और द पर्सन, कंपनी टू हुम द पेमेंट इज मेड. जिसको भी आप पेमेंट दे रहे हो उसका नाम यहां पे आपको दिखाई देगा. अमाउंट इन वर्ड्स, देयर विल बी अमाउंट इन वर्ड्स. ओके, दैट विल बी रिटन हियर. यू विल सी अ पर्टिकुलर डेट, वहां पर आपको डेट भी दिखाई देगा. यू विल सी द सिग्नेचर, the sign of the account holder जिसका वो चेक है. ओके, ओके. नेक्स्ट इज अमाउंट इन फिगर्स. यू विल सी चेक नंबर. एवरी चेक हैज इट्स यूनिक नंबर. हर एक चेक का अपना एक अलग नंबर होता है बच्चों. ओके, इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर मनी टू द पेइंग अकाउंट. सो अ चेक इज अ इंस्ट्रक्शन. ये चेक क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है. किसको दे रहा है इंस्ट्रक्शन? बैंक को दे रहा है. क्या इंस्ट्रक्शन है? बैंक को कह रहा है कि आप मेरे अकाउंट में से पैसा इस इंसान को या इस कंपनी को दे दो. ओके, सो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्यों कहा गया? बिकॉज अ पर्सन हु इज गिविंग द चेक, जो चेक दे रहा है, ही इज इंस्ट्रक्टिंग हिज बैंक. वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने बैंक को कह रहा है कि मेरे अकाउंट में से आप पैसा किसको दो? इस पर्टिकुलर इंसान को जिसका नाम यहां पर है. ओके, एंड दिस टू लाइन्स रिप्रेजेंट अकाउंट पे. अकाउंट पे का मतलब ये है बच्चों, ये जो दो लाइन है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अब ये सोच रहे होंगे, सर मान के चलो मेरा 5 लाख का चेक है और कहीं रास्ते में गिर गया और किसी और को मिल गया, वो अपने अकाउंट में डाल के पैसे ले लेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज यू आर मेंशनिंग द नेम हियर एंड व्हेन यू स्पेसिफाई दिस, डायरेक्टली वो अकाउंट में जाएगा आपके, जिसका भी नाम यहां पर लिखा हुआ होता है. सो इट इज वेरी सेफ मोड ऑफ transaction. Okay, so don't worry about it. We have one more question is, what is a bank check? That is, what is a check? Okay, and describe the advantages of check as a mode of transaction. उसके advantages बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया. That is, it is widely accepted as a medium of exchange. आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप चेक देके भी पेमेंट कर सकते हैं. सेकेंड, सिक्योरिटी. सो ये डर नहीं रहेगा कि कोई चोरी कर लेगा. सो यू वोंट हैव दैट फियर. राइट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज चेक. मैंने अभी आपको बताया चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट which is giving instruction. Okay, let's mark this on your textbook. Textbook पे mark कर लेते हैं बच्चों इसको. Okay, I'll just mark this. Okay, so here you have to mark what is check. A paper instructing here. ये जो green line में है बच्चों, इसको आपको underline करना है. ठीक है, you have to underline this. A check is a paper from here to issued. यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ चेक. चेक का डेफिनेशन आपको यहां पे मिल जाएगा. यू हैव टू राइट हियर डिफाइन चेक. ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं. Yes, we'll move on in this chapter. Old forms of money. We have
टू काइंड्स ऑफ मनी है, दो चीजें हम बात करेंगे टुडे। आज जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट करेंसी, जो नोट हम आज यूज कर रहे हैं, ओके, वी हैव एवरीबॉडी हैज सीन इट, बट बिफोर दिस जो नोट आज हम यूज कर रहे हैं दे वर नॉट द सेम अर्लियर। तो पहले किस चीज को इस्तेमाल किया जाता था? ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी व्हेन आई टॉक अबाउट, यू कैन सी ऑन योर टेक्स्ट बुक आल्सो दिस इमेज इज देयर, आपके टेक्स्ट बुक पे भी ये सेम इमेज है, ओके। नाउ अर्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, हमारे पास गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स ये हुआ करती थी, एंड दिस कॉइन्स दे हैड अ वैल्यू, इनका खुद का एक वैल्यू होता था। सोना जो है उसका अपने आप में एक वैल्यू होता था। बट इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आज के पैसे की अगर मैं बात करूं, इट डज नॉट हैव वैल्यू, अपने आप में उसका वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू तभी है जब गवर्नमेंट कह रही है, when the government is guaranteeing, when the government is giving instructions that on behalf of the central government, the RBI is issuing the notes and the government gives the guarantee, जिसके पास भी वो नोट होगा उतना वैल्यू वो उसको पे करेगा। So that's why that currency has a value. Otherwise, अपने बलबूते पे उसका कोई वैल्यू नहीं है। It's just a paper or it's just a coin. But earlier, when we talk about old forms of coins, उनका खुद का वैल्यू हुआ करता था, और आज की जो करेंसी है इनका अपने आप में कुछ वैल्यू नहीं है। Okay? Okay? Now the question arises, why is money accepted as the medium of exchange? पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों यूज किया जाता है? Why it is accepted as medium of exchange? Okay? So the answer, I'll just mark it first. पहले मैं आपके टेक्स्ट बुक में इसको मार्क कराता हूं, then I'll explain to you. Okay? Okay? Here bachcho, okay, you can see these are the images also you have here in your textbook. Now why is money accepted as medium of exchange? पैसे को क्यों accept किया जाता है? Okay, why it is accepted? Now you have to mark from here, okay, it is accepted, you have to mark from here बच्चों, okay, यहाँ से mark करना है आपको, it is accepted से, okay, यहाँ से mark कीजिए आप, okay, on the other side यहाँ तक continuation में till here, end of the paragraph, यहां तक आपको मार्क करना है। So this is your answer, okay? Why money is accepted as medium of exchange? Now let us discuss about this. इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Okay? Let us discuss this question. This is very important. Why money is accepted as medium of exchange? Okay? It is accepted as medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? ये इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। नाउ, ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, in India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. This is also very important. One more question can be asked. Okay, who issues the currency notes? That is RBI, Reserve Bank of India, but on behalf of central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. क्या हमारे देश में कोई दूसरा नोटों को छाप सकता है? No, nobody is allowed according to our law. Only RBI, that is Reserve Bank of India, is allowed to do so. Okay. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. What do you mean by this? This point is very important. अगर आप कुछ खरीद रहे हो और कोई मना करता है, नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे और कुछ चीज चाहिए, he is to be called as criminal. He cannot deny. वो पैसे को इनकार नहीं कर सकता. If he is denying, you can file a case against him और उसको सजा मिलेगी। ओके, तो पैसा जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई मना नहीं कर सकता कि मैं पैसा नहीं लूंगा। इट कैनॉट बी डिनाइड। No individual in India can legally refuse a payment made in rupee. What do you mean by this? इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, बच्चों मैं जब भारत के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मैं भारत के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया ओनली, दैट्स व्हाई। ओके, सो
हम जब रुपीस की बात करते हैं, इंडिया के अंदर आप कहीं शॉप पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, और आप अगर कुछ ले रहे हैं और अगर आप पैसा दे रहे हो, कह रहा पैसा नहीं लूंगा, कुछ और चीज लूंगा, ही कैन नॉट डू सो। सिंपल मीनिंग उसका ये है, क्योंकि वो इलीगल होगा अगर वो डिनाई करता है, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, ठीक है। सो हेंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो दैट इज व्हाई द करेंसी द रूपी इज एक्सेप्टेड वाइडली इन आवर कंट्री। फाइन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई अपने आप से कोई करेंसी इश्यू नोट नहीं करता है बच्चों, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज द करेंसी नोट्स। ओके, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। We'll talk about functions of RBI. Okay, RBI के क्या functions है? First, RBI issues currency notes on behalf of the central government. This is the first function. Second, RBI, that is Reserve Bank of India, supervises the functions of formal source of loans. This is we are going to learn in the next part. RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance. अभी आगे हम इसको देखने वाले हैं, दैट इज मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है बैंकों का, दैट इज 15% इन इंडिया। ओके, इट आल्सो सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल बोरोवर्स, स्मॉल कल्टिवेटर्स एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द बैंक शुड नॉट बी पार्शियल। ऐसा नहीं हो कि बैंक जो है सिर्फ अमीरों को ही लोन दे रहा है, गरीबों को लोन नहीं दे रहा है। क्या बैंक ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन देख रहा है ऐसा करने से उनको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। This bank is the bankers bank. This is the head bank. This is the apex bank. What do you mean by apex bank? This is the supreme bank in India, जो सारे बैंक को देखता है। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर है जो बाकी बच्चों को देखता है, वैसे ही आरबीआई एक मॉनिटर है जो दूसरे बैंक्स को चेक करता है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पीरियडिकली banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. So the bank need to submit all the reports to the Reserve Bank of India. किसको पैसे दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं. They have to specify everything so that the cheating should be avoided. Okay. Loan activities, we are going to talk about the loan activities of the bank. Okay, when we talk about loan activities, how the banks work. Fine, banks कैसे work करते हैं, we'll see this. Okay, okay. So before that, we need to know one thing. उसके पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए. Deposits with bank, that is 15% of deposit as cash to arrange for daily withdrawals by deposits. तो 15% जो है आपका बैंक्स मेंटेन करता है, दैट इज फॉर डेली यूज. डेली यूज का मतलब है जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उस बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं. बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं, सर अगर सारे लोग एक साथ में जाकर बैंक में पैसा ले ले तो क्या होगा? इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. बट द पीपल हु गो टू बैंक्स, जो अपना पैसा लेने के लिए जाते हैं, वो पैसा बैंक उनको कहां से देता है? फ्रॉम दिस 15% वो उनको ये पैसा देता है. फाइन. नेक्स्ट इज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट इज यूज्ड टू गिव लोन्स. बाकी का 15% तो जो विड्रॉ करने आते हैं, जो अपना पैसा निकालने आते हैं, उनको मिलता है वो पैसा. और बाकी का जो पैसा है बैंक क्या करता है? इट गिव्स लोन्स टू द पीपल. इट गिव्स लोन टू द पीपल. देखते हैं कैसे होता है ये. विल सी हियर. ओके, यू सी इन दिस इमेज, आई विल क्लियरली एक्सप्लेन यू. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. बैंक, दिस इज अ बैंक. विल सी द एक्टिविटीज ऑफ बैंक. बैंक क्या करता है? We have depositors, okay, and we have borrowers. When I talk about depositors, जब मैं depositors की बात कर रहा हूं बच्चों, तो ये वो हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, सरप्लस, एक्स्ट्रा पैसा है, और जो बैंक में जाके अपना पैसा जमा करते हैं. They are called depositors. When a depositor will deposit his money in bank, जब एक depositor अपना पैसा बैंक में जमा करता है, एक तो उसका पैसा सेफ है, and second he will get interest for his money. जो पैसा उसने जमा किया है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, रिमेंबर वन थिंग, जो पर्सन अपना बैंक डिपॉजिट में पैसा जमा करता है उसका इंटरेस्ट हमेशा लोन इंटरेस्ट से कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहां डिपॉजिटर जो है अपना जो पैसा जमा कर रहा है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 5%.
कितना परसेंट बच्चों? 5%. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके. ऑन द अदर साइड, बोरोवर्स आर दोज पीपल हु नीड मनी, जिनको पैसे की जरूरत है. ओके. नाउ दिस पीपल विल कम टू बैंक टू टेक लोन. अब जब ये लोन लेंगे और जब ये लोन चुकाएंगे तो इनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट दिस इंटरेस्ट विल बी हायर देन द इंटरेस्ट विच अ डिपॉजिटर गेट. मतलब क्या है इसका? जिसने अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसको 5% मिल रहा है, पर जब वो लोन लेगा और वो लोन चुकाएगा तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल 15% और 12%, 12% मान के चलिए. सो दिस इज हायर देन द डिपॉजिट परसेंटेज. नाउ दिस डिफरेंस इज द अर्निंग ऑफ बैंक. यही जो डिफरेंस है वो बैंक का अर्निंग है. तो आप सब सोच रहे होंगे तो बैंक को कैसे फायदा मिलता है, बैंक कैसे अपना पैसा कमाता है? दिस इज हाउ इट अर्न्स इट्स प्रॉफिट. कैसे? इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन्स माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट इज इक्वल टू इनकम ऑफ बैंक. सो दिस इज द इनकम ऑफ बैंक. इस तरह से बैंक अपना इनकम अर्न करता है बच्चों. ओके. सो if you don't understand anything, please rewind the video, watch it again, and remember one thing students, when you watch this video, your textbook must be with you. Okay. Study nicely, take care of your health, because we have to stop here because this is the end of part 1. We'll meet soon in part 2. Take care of your health. Thank you and have a nice day.